বোস, কারণ সে আজও জীবিত। সুভাষ যখন আইসিএস ছেড়ে নিজের মাটিতে পা রাখল, তখন সেই মাটি বেশ উত্তপ্ত। গান্ধীজিকে সামনে রেখে শুরু হয়ে গিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন। দিকে দিকে পুড়তে লাগলো বিদেশি কাপড়, বয়কট করা হলো ব্রিটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও। যে মেয়েরা এতদিন অন্দরমহলেই দিন দুপুর কাটাচ্ছিলেন, তারা পর্যন্ত সেই বেড়া ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। মানুষ কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিল যে কেউ যদি ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারে, তাহলে তা মহাত্মা গান্ধীই পারবেন। সুভাষও তাই বম্বেতে নেমেই প্রথমেই গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে গেল। Oh, I'm sorry, Gandhiji. I entered your room with my shoes on. Sorry. আরে ইটস ওকে, কাম ইন, কাম ইন। No, Gandhiji, I will leave them outside. And then come in. আচ্ছা আচ্ছা, ডু অ্যাজ ইউ ফিল। Living in a foreign land has made me kind of forget all of these Indian traditions. सुभाष चंद्र, that is just a matter of practice. Habit भी कह सकते हो. If you respect your tradition and hold it dear to your mind, तब वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रह जाता है. जी गांधीजी, ये तो आपने बहुत सही कहा. मैंने सुना कि तुम इंग्लैंड में पढ़ने गए और आईसीएस भी बन चुके थे, लेकिन सब छोड़ छाड़ कर वापस चले आए. क्यों सुभाष? गांधी जी, आप भी तो साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर का काम छोड़कर यहां गए. जरा बताएंगे आपने ऐसा क्यों किया? That was a good one, सुभाष चंद्र. तुमने तो मुझे उल्टा चेकमेट कर दिया. असल में सुभाष, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है. मुझे मालूम है तुमने कैसे कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल किए. Really, Subhash, it takes a real strong heart to fight a lone battle, and that too in a foreign land. Bravo, Subhash, bravo. गांधी जी, आपने जो किया है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है. No, Subhash, it's not about how many times you do it. It's about how intensely you do it. If that is the point, then I can assure you that I have enough resolve to last my lifetime. That is what we direly need at this moment, Subhash. लेकिन अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं. अरे बेझिझक पूछिए, प्लीज डोंट हेजिटेट. You want to be a part of this freedom struggle, isn't it? That is the one and only thing I think of nowadays, गांधी जी. मेरा हर एक पल यही सोच के कटती है कि कैसे कुछ मीनिंगफुल किया जाए. हाउ डू वी गेट द इंग्लिश ऑफ फ्रॉम आवर बैक? But do you think that the English have nothing to offer us? इन्हें भगाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट गांधी जी. मैं ये तो कभी नहीं बोल सकता. मैंने उनके वर्क एथिक्स देखी है. देयर इनक्रेडिबल सेंस ऑफ डिसिप्लिन हैज अमेज्ड मी. देयर मेथड ऑफ अप्रोचिंग एनी वर्क, that it just blended. But Gandhi ji, can we expect them to do all this for any benefit of ours? मुझे तो नहीं लगता. Otherwise you wouldn't have to fight so hard to get what is due. क्या मैंने कुछ गलत कहा गांधी जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. You have been very right in your assessment of the English. In fact, I should say, the way you have analyzed the British speaks volumes of the homework you have done on them. सुभाष, मैं तुम्हें और क्या कहूं. तुम्हारे जैसे और भी हमारे साथ हो जाए तो क्या बात. यही सोच हम सब मिलके देश के हर एक कोने में फैला सकें, तभी तो कर पाएंगे हम असली महासंग्राम. মহাসংগ্রাম তো গান্ধীজি তার মতো করে শুরু করেই দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সঙ্গে চাইছিলেন এমন মানুষ যারা ওর কথা মতো এই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন. সুভাষকে প্রথম দেখাতেই গান্ধীজির যে মনে ধরেছিল সে তো বোঝাই যাচ্ছে. তিনি বুঝতে পেরেছিলেন
সুভাষ ভবিষ্যতে অনেক দূর যাবে। কিন্তু সুভাষ সে কি ভাবছিল? তার কি কিছু প্রশ্ন করার ছিল না গান্ধীজিকে? Gandhiji, the need of the hours is to understand what they have in their armory, and more importantly, what we have with us. How can we counter them without damaging our defense? बिल्कुल सुभाष, मैं तो शुरू से ही यही बात कह रहा हूं कि हमें कुछ करने से पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझना होगा, फिर हमें देशवासियों के पास जाकर उन्हें ठीक तरह से यही बात समझाना होगा। नहीं तो वो सब सिर्फ एक लीडर के पीछे अंधे होकर चलते रहेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। इस बारे में तुम क्या सोचते हो सुभाष? You are very right, गांधी जी। और आपने तो ये काम शुरू ही कर दिए हैं, लेकिन इस बारे में मेरे मन में भी कुछ सवाल हैं। ये तो और भी अच्छी बात है भाई, बोलो तुम्हारे मन में क्या है। मैं तुम्हारे प्रश्नों का शायद सही सही उत्तर दे पाऊंगा। गांधी जी, the first thought I had after hearing of your idea of this movement was, how would not paying taxes help us in achieving our desired goals? सुभाष, ये इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो और भी दूसरे परिणाम ला सकता है। लेकिन इससे तो ये ब्रिटिश लोग और भी कठोर हो सकते हैं हमारे ऊपर। What is the point in antagonizing them further? ये कैसी बात हुई सुभाष? क्रोधित तो हम उन्हें कर ही रहे हैं, अब और एक बार कर लेंगे तो क्या नया होगा? कुछ नया नहीं होगा, लेकिन हम तो जानते हैं कि इस लड़ाई में शुरू से ही हम पिछड़े हुए हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू कवर लॉस्ट ग्राउंड। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपने ताश की पत्ते खूब सोच समझ के निकलना चाहिए। प्लीज डोंट थिंक आई एम अगेंस्ट योर प्लान्स। मेरे मन में कुछ सवाल घूम रहे थे, सो आई थॉट आई माइट जस्ट इंक्वायर अबाउट योर व्यूज। नहीं नहीं, ठीक है, डोंट वरी। तुम और भी अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, घबराओ मत, पूछो सुभाष। आपको क्या लगता है कि ये सब करने से वो लोग हमारे देश छोड़ कर चले जाएंगे? बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं। अगर हम ठीक तरह से ये लड़ाई लड़ सकें तो ये क्यों नहीं हो सकता? बट गांधी जी, व्हाट डू यू मीन बाय ठीक तरह से? हु डिसाइड्स द राइट वे? अब सुभाष, ये मैं कैसे कहूं। मैंने मेरे ढंग से एक प्लान बनाया है और मुझे लगता है कि उसी रास्ते पे चलने से परिस्थिति में कोई सुधार आएगी। इसीलिए मैं दूसरों को भी इसी रास्ते में आने का अनुरोध कर रहा हूं। अब अगर किसी को मेरे साथ ना चलने का मन हो तो वो दूसरा रास्ता ले सकते हैं। मैं मना करने वाला कौन होता हूं भला? गांधी जी, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नॉट सब्सक्राइबिंग योर आइडियाज। दिस इज अबाउट द एप्रीहेंशन। सुभाष सुनो, मुझे अपने चुने हुए रास्ते पे भरोसा है और मुझे विश्वास है कि मैं इसी पे चलकर सफल हो पाऊंगा। And you think that these non-cooperation movement will translate into the British getting us Swaraj? Definitely. मैंने तो सभी के सामने ये भी कहा है कि ये स्वराज जो है वो हमें 1 साल के अंदर प्राप्त होगी। But don't you think that this assurance is a bit far-fetched? 1 साल में स्वराज प्राप्त होगी, ये कैसे आप कह रहे हैं? This is going to be a long drawn war. कब खत्म हो, किसे पता? सुभाष, ये तुम्हारा अपना ओपिनियन है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तुम्हें जो सोचना है या जो भी करना है तुम कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है तुम पर। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि 1 साल के अंदर हमें स्वराज अवश्य प्राप्त होगी। याद रखना सुभाष, 1 साल। সুভাষ গান্ধীজির আলোচনা শুরু হয়েছিল একভাবে আর শেষ হলো কিন্তু অন্য তারে। সুভাষের কিছু প্রশ্ন সম্ভবত গান্ধীজির মনোপুত হয়নি। গান্ধীজির মনে কি অন্য কোনো আশঙ্কা উঁকে দিচ্ছিল?